Hello everyone, welcome to my channel Evershine. My name is Surbhi. Today we are going to discuss a high level puzzle for banking mains exams. But before starting, I request you to please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get latest video updates. Let's start. See, this is the diagram that is given to you with this question in which we have two squares, inner square, outer square, and one is circle. Fine. Now let's start. 8 friends P, Q, R, S, T, U, V and W sit in inner square table in such a way that 4 of them sit on the 4 sides while rest of them sit at corners. So initially जो 8 friends हैं वो inner square में बैठे हैं, 4 है जो corners पे and 4 sides पे हैं. Each of them is of different age. तो ये 8 ages हैं, different age के हैं 8 friends. But not necessarily in the same order. Some of them are facing the center while some of them facing away from the center. कुछ center face कर रहे हैं and कुछ center facing away from the center. Fine. Now see, Q faces towards the center of the table. So initially friends are in a inner square table. 4 of them sit at the 4 corners and 4 of them sit on the 4 sides. Fine. Q faces towards the center of the table and does not sit at any corner. It means Q middle पे होगा, side पे बैठेगा, अगर corner पे नहीं बैठेगा तो side पे होगा and face towards the center of the table. It means इस तरह Q को ले सकते हैं facing towards the center. Fine. We sit on one of the corners between the one whose age is 21 years and the one whose age is 18 years. अब जो V है वो corner पे बैठा है, किन 2 पर्सन्स के बीच में बैठा है, किन 2 फ्रेंड्स के बीच में बैठा है जिनकी एज 21 एंड 18 ईयर्स है. तो अभी हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है. वी कॉर्नर पे होगा, 21 एंड 18 जो फ्रेंड्स हैं जिनकी एज है उनके बीच होगा. फाइन. नाउ सी द नेक्स्ट वन. डब्ल्यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वन हुज एज इज 16 ईयर्स हु फेसेस द सेंटर. इट मीन्स 16 ईयर वाला पर्सन है वो सेंटर फेस कर रहा है. फाइन. और W उसके सेकंड राइट पे है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं 16 जो होगा जिस पर्सन की एज 16 ईयर्स होगी, W उसके क्या है सेकंड राइट पे है. इट मीन्स इट विल बी लाइक दिस. फाइन. नाउ सी द नेक्स्ट वन. द वन हुज एज इज 9 ईयर्स सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q. अब हमारे पास Q तो ऑलरेडी है, जिसकी एज 9 ईयर्स है वो Q के थर्ड लेफ्ट पे है. 1 2 3, तो 9 ईयर वाला यहाँ पे आ जाएगा. फाइन. Now see the next one. S sits opposite to W. अब S and W opposite है, इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम साइड पे एक बार नोट कर लेते हैं. P sits on the corner exactly opposite to T. P and T opposites and corner पे हैं. कॉर्नर पे होंगे, किसी भी कॉर्नर पे हो सकते हैं. Fine. It means they will be diagonally opposite to each other. P and T will be opposite to each other and at the corners. Fine. Now see the next one. The one whose age is 16 years sits third to the right of one whose age is 8 year. अब जिसकी एज 8 ईयर है उसके थर्ड राइट पे होगा 16 ईयर का. तो 2 केस हो सकते हैं. अगर ये फेस टुवर्ड्स द सेंटर है तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर ये आउटसाइड द सेंटर है तो इस तरह से होगा, बिकॉज वी डोंट नो आइदर इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर. फाइन. Now see the next one. The one whose age is 25 years does not face the center. It means जिसकी एज 25 years है वो face away from the center. Person whose age is 18 years sits opposite to Q. Now Q हमारे पास ऑलरेडी है. अब जिसकी एज 18 years है वो Q के ऑपोजिट है, तो 18 ईयर वाला यहाँ पे आ जाएगा. फाइन. ऑल्सो फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ Q, बट डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट है. अब Q फेस कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये क्या फेस करेगा अवे फ्रॉम द सेंटर. फाइन. एंड सिट्स बिटवीन द वन हुज एज इज 8 and 9 ईयर्स. 8 and 9 ईयर्स की एज के बीच में है. अब 9 ईयर्स यहाँ पे है तो ये वाला पर्सन 8 and 9 के बीच है, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट सी द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. T whose age is 9 years sits immediate right to the one whose age is 13 years. अब हमारे पास 9 है, अब पता लग गया T की एज है 9 years. T whose age is 9 years, तो यहाँ पे आ जाएगा T sits immediate right of the one whose age is 13 years. अब T कहाँ पे है,
किसके राइट में बैठा है, 13 के, यहाँ तो हो नहीं सकता 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, टी इसके राइट पे बैठा है तो ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, इट मीन्स फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. फाइन. नाउ सी दिस वन, V sits at the corner and between the persons whose age is 21 years and 18 years. Now this is 18 years, so इधर तो हम 21 ले नहीं सकते, इस कॉर्नर पे तो ऑलरेडी T आ चुका है और ये 13 आ चुका है, ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा 21 एंड V इस कॉर्नर पे बैठ जाएगा. इस कंडीशन को हम कट कर देते हैं. नाउ T हमारे पास आ चुका है एंड वी नो दैट P एंड T आर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर बिकॉज दे वर both are at the corners. If this is T, this will be P. This is done. Fine. Now see the next one. 8 and 16 में 2 persons थे, 1 2 16. यहाँ तो नहीं आ सकता 1 2 16, ये होगा 16. और हमें बताया था क्वेश्चन में, it was given in the question that one whose age is 16 years sits third to the right of the one whose age is 8 years. So ये 16 वाला 8 के राइट पे है, थर्ड राइट पे है. सो इट विल बी लाइक दिस 1 2 3. फाइन. नाउ सी दिस इज ऑल्सो डन. नाउ सी द नेक्स्ट वन. वन हुज एज इज 16 ईयर्स, उसके सेकेंड राइट पे कौन है, W. तो 16 ईयर्स वाला हमारे पास आ चुका है, इसके सेकेंड राइट पे क्या आ जाएगा, W. तो ये आ जाएगा हमारे पास W. This is also done. Now see, S and W are opposite to each other. If this is W, S will be here. Fine. This is done. Now see the next instruction. Person whose age is, who is 13 years old, faces the same direction as U faces. जो 13 ईयर का है वो क्या फेस कर रहा है, आउटसाइड. फाइन. तो U भी क्या फेस करेगा, आउटसाइड. दिस इज गिवन. फाइन. Now see the next one. The immediate neighbors of Q are facing opposite directions. Q के immediate neighbors हैं, opposite direction face करेंगे. अभी हमें दोनों की directions नहीं पता तो हम कुछ भी अभी इसमें लिख नहीं सकते. See the next one. Person whose age is 8 years sits exactly opposite to the one whose age is 36 years. अब 8 years वाला 36 के opposite है. Now 8 years वाला ये तो 36 वाला आ जाएगा यहाँ पे. फाइन. द ओनली एज लेफ्ट इज 25 ईयर्स, तो ये आ जाएगा 25. अब देखो 25 हमें ऑलरेडी बोला था 25 वाला सेंटर फेस नहीं कर रहा, तो ये आ जाएगा आउटसाइड द सेंटर. अगर ये है, अभी कंडीशन दी थी कि जो Q के इमीडिएट नेबर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो ये फेस करेगा टुवर्ड्स द सेंटर. फाइन. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. नाउ सी द नेक्स्ट वन. The one who is on the immediate left of U is facing the same direction as W. R sits third to the left of W. तो W हमारे पास आ चुका है, R इसके थर्ड लेफ्ट पे है. 1 2 3, इधर तो नहीं हो सकता 1 2 3, तो R आ जाएगा यहाँ पे, W के थर्ड लेफ्ट पे है, तो इस तरह आएगा W के थर्ड लेफ्ट 1 2 3. फाइन. नाउ द ओनली पर्सन लेफ्ट इज, this is 8 years. Okay, this is V. Now only person left is U. Now see, the one who is an immediate left of U is facing the same direction as U. जो U के immediate left पे है, T है, same direction face कर रहा है जो कि W face कर रहा है. Immediate left of U is facing the same direction as W. तो W की क्या है, facing inside, तो T will also face inside. Fine. Now see, we have 8 friends and we got directions of all these. Also we got the ages. Fine. Now see this one. Now they started playing game by picking paper chits marked from 1 to 8. Firstly, U picks a paper chit and changes its position according to the following conditions, and similarly all persons will pick paper chit in clockwise direction starting from U. अब हो क्या रहा है, अब इन्होंने गेम प्ले करनी है, कुछ पेपर चिट से 1 to 8 मार्क हैं. फर्स्टली U की टर्न आएगी, वो चिट पेपर चिट पिक करेगा और अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस. फाइन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उन्होंने प्ले करना है. पहले U की टर्न आएगी, देन V की टर्न आएगी, W की, P की, Q की, R S एंड देन T की टर्न आएगी. फाइन. Now see conditions.
इफ नंबर ऑन द पेपर शीट कम्स आउट टू बी ऑड, अगर पेपर शीट का नंबर ऑड आता है 1 3 5 7, देन पर्सन हु फर्स्ट गेट्स एन ऑड नंबर शीट मूव्स टू पोजीशन 1 ऑफ द सर्कल विद सेम डायरेक्शन एज ही इज करंटली फेसिंग एंड हिज एज विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3। अब क्या है, फर्स्ट कंडीशन बोल रही है अगर पेपर शीट में से ऑड नंबर पिक होता है, जो फर्स्ट पर्सन ऑड नंबर पिक करेगा वो सर्कल की फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा, सेम डायरेक्शन जो कि वो अभी फेस कर रहा था सेम डायरेक्शन ही फेस करेगा, बट उसकी एज है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड पर्सन जिसका अगेन ऑड नंबर आएगा वो सर्कल की पोजीशन 2 में चला जाएगा विद सेम डायरेक्शन एंड एज विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, सो ऑन। ठीक है, अगर ऑड जिनके भी ऑड नंबर शीट्स आएंगी, जो फर्स्ट नंबर पे आएगी वो सर्कल के फर्स्ट पोजीशन में चला जाएगा, सेकंड जो ऑड पिक करेगा वो सेकंड में चला जाएगा, थर्ड ऑड पिक करेगा थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा एंड सो ऑन। फाइन, नाउ सी द नेक्स्ट कंडीशन, if the number on the paper sheets comes out to be even less than equal to 4, now we have paper sheets 1 to 8, अगर इवन आता है बट 4 तक यानी 2 या 4, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4, इवन नंबर आता है लेस देन इक्वल टू 4, इट मीन्स अगर 2 आता है या 4 आता है तब क्या होगा, देन द पर्सन हु गेट्स फर्स्ट, जिसका पहले इवन नंबर चिट आई है वो आउटर स्क्वायर में चला जाएगा, दिस इज योर आउटर स्क्वायर, पोजीशन 1 पे चला जाएगा। फाइन, एंड विल फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, जो करंट डायरेक्शन फेस करेगा डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी एंड एज विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, और उसकी एज है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली उसके बाद जो सेकंड पर्सन पिक करेगा इवन नंबर चिट वो आउटर स्क्वायर की पोजीशन 2 पे चला जाएगा एंड सेम ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेगा एंड उसकी एज है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड सो ऑन। फाइन, नाउ सी द थर्ड कंडीशन, इफ नंबर ऑन द पेपर शीट्स कम्स आउट टू बी इवन लेस देन ग्रेटर देन 4, अब अगर इवन तो आता है बट ग्रेटर देन 4, इट मीन्स 6 या 8, अगर 6 आएगा ये 8 आ जाएगा, देन द पर्सन रिमेन्स इन द सेम स्क्वायर, उसी स्क्वायर में रहेगा, आउटर स्क्वायर में नहीं जाएगा, सर्कल में नहीं, इनर स्क्वायर में रहेगा विद सेम डायरेक्शन, जो डायरेक्शन फेस कर रहा था एंड सेम पोजीशन, एंड 2 विल बी एडेड टू हिज करंट एज, उसकी करंट एज में 2 ऐड कर देंगे। फाइन, नाउ सी, सबसे पहले यू ने पिक की है, यू पिक्स नंबर 3 चिट, अब यू ने 3 नंबर पिक चिट को पिक किया है, 3 इज एन ऑड, ठीक है, ऑड नंबर के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, सर्कल में मूव होगा पोजीशन 1 में और उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी जो कि वो करंटली फेस कर रहा था एंड एज है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो दिस इज यू, ठीक है, इट विल मूव टू द सर्कल पोजीशन 1 with same direction, age will be multiplied by 3, it will be 54. Fine, now see the next one, V picks number 6 chit, अब इस पे थर्ड कंडीशन लगेगी, see it carefully because थर्ड कंडीशन में था even greater than 4, यानी कि 6 and 8, इसके लिए थर्ड कंडीशन लगेगी, V उसी स्क्वायर में रहेगा, सेम पोजीशन सेम डायरेक्शन बट 2 will be added to his current age, सो वी यहाँ पे था यहीं पे रहेगा। फाइन, उसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी एंड पहले वो 8 ईयर्स का था, अब 2 ऐड कर देने तो कितना बन जाएगा 10 ईयर्स। नेक्स्ट, W पिक्स नंबर 4 चिट, इस पे कंडीशन नंबर 2 लगेगी। कंडीशन नंबर 2 में क्या बोला था, इवन लेस देन और इक्वल टू 4, अगर 4 भी आता है तो कंडीशन यही अप्लाई होगी, द पर्सन हु कैन दिस विल मूव टू द आउटर स्क्वायर विद ऑपोजिट डायरेक्शन एंड एज विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, so W will move to the outer square, here it is। फाइन, आउटर स्क्वायर में ये चला जाएगा फर्स्ट पोजीशन में, एज विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द डायरेक्शन ही फेस इज टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये आ जाएगा अवे फ्रॉम द सेंटर। फाइन, नाउ सी द नेक्स्ट वन, P पिक्स नंबर 2 चिट, P पिक्स नंबर 2 चिट, दिस इज ऑल्सो कंडीशन नंबर 2। फाइन, सो ये आएगा आउटर स्क्वायर में आ जाएगा P, दिस इज P, एज विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड ही वॉज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, नाउ फेस टुवर्ड्स द सेंटर। नाउ सी द नेक्स्ट वन, Q पिक्स नंबर 5 चिट, 5 चिट, अब ऑड नंबर किया तो सर्कल में मूव होना है, Q विल मूव टू द सर्कल एट पोजिशन नंबर 2, 16 का था, एज विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, इट विल बी 48 and direction will remain same. All right, now see the next one, R picks number 1 chit, so number 1 is also odd, so R will move to position 3 of the circle,
R is of 36, it will become 108, and facing towards the center, so again he will face towards the center. Now see the next one. S picks number 7 chit. 7 chit is also odd, so S will come at position 4 of the circle. His age was 13 years, multiplied by 3, you will get 39, and he was facing outside, so it will position will his direction will remain same. Okay. Now see the next one. T picks number 8 chit. नंबर 8 के लिए कंडीशन नंबर 3 अप्लाई होगी. T picks number 8 chit. Number 8. Okay, T. Where is T? This is T. So T will remain in the same square, that is in the inner square, and 2 will be added to his current age, and he will face same direction as he was facing initially. Fine. So this is how you have to solve this puzzle. Now see some questions based on it. First question, what is the sum of the ages of W and Q after changing their positions, that is in the final arrangement. W and Q की ages का sum बताना है final arrangement में. जब ये वाला नहीं बताना, ये initially उनकी positions थी, तो उन्होंने बोला after changing their positions. Okay, so W and Q, where is W? This is W. W is of 42 years and Q 48 years. तो इनका सम क्या बन जाएगा? 90 years. So right answer here is option B, that is 90 years. Now see next question. How many persons facing same direction in final arrangement as they were facing while all sat in the inner square table? So initially and finally कितने persons की direction same ही है जिन्होंने अपनी direction change नहीं की. Now see यहाँ पे time waste नहीं करना, सभी की check, क्योंकि हमें conditions में आपका presence of mind बहुत matter करता है, क्योंकि conditions में already एक चीज़ given थी कि जो इनर स्क्वायर में रह रहे हैं उन्होंने तो अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं की, और जो सर्कल में भी जा रहे हैं उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं की. किन्होंने डायरेक्शन चेंज करनी थी? ओनली जो आउटर स्क्वायर में जा रहे थे. वो कितने पर्सन्स हैं? 2. इट मीन 6 ने तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं की, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज 6. फाइन. You don't need to calculate, see everything like here S is facing towards the center where no. इतना टाइम नहीं पेपर में वेस्ट करना. आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपका होगा तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा. See the next question. Which among the following person does not sit in outer square table? इनमें से कौन सा पर्सन आउटर स्क्वायर टेबल में नहीं बैठा? फर्स्ट इज W. सी W बैठा है. नेक्स्ट इज V. V नो. V इज इन द इनर स्क्वायर टेबल. तो यहाँ पे अभी हमने ऐसे मार्क नहीं कर देना. अगर आपको ऑप्शंस में नन ऑफ दीज दिया हुआ है तो सारी ऑप्शंस को देखना है. नेक्स्ट इज P. P ऑलरेडी है आउटर स्क्वायर में. नेक्स्ट इज U. नाउ सी U भी नहीं आउटर स्क्वायर में, U तो सर्कल में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, दैट इज नन ऑफ दिस, बिकॉज V एंड U बोथ आर नॉट सिटिंग इन द आउटर स्क्वायर टेबल. फाइन. I hope you liked this puzzle. If you liked it, then please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get latest video updates. If you have any query, suggestion, you can write it in the comment sections, or you can email me at the email ID given in the description box. Thank you for watching my video.